Hello, good evening to all, and welcome to RN Talks. And I'm founder रंजीता नाथ घई, and आज हम बहुत ही खास गेस्ट को आपके सामने लेकर आए हैं. Her name is also Ranjita. She is Mrs. Ranjita Sahai Ashesh. She is a proud army officer's wife and an author of Sushmanjali series. A poetpreneur, she has been running a pan-India Indian poetry organization called Kshitij, where dreams meet reality. She's also a certified life coach, a blogger, an international poetess, a media personality, Mrs. India's Most Talented 2018, National Director KFL, and CEO of Kshitij Publications. Well, I would say that's a very, very heavy duty dossier. So, पूरे जो मैंने आपको बताया है इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी शख्सियत है. चलिए मिलते हैं आज उनको RN Talks के ऊपर. And let me tell you all that she is also an RSVK 2023 awardee as well as the winner of Khushu Founders Choice Awards. So let's meet Mrs. Ranjita Sahai Ashesh. Good evening, Ranjita, and welcome to RN Talks. Thank you so much, Mrs. Gai. Thanks for the invite and congratulations for the successful award ceremony. And wonderful it was to be part of our Karamveer Awards. Yeah, it's a pretty long name. I can understand. मैं खुद भी stumble कर जाती हूँ. So it's not just Karamveera. You are also the Founders Choice Award. Khushu Founders Choice Award also goes to you. So you'll be getting 2 awards. So, Thank you so much. and, Humbled और थैंक्स ऑनर्ड भी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके. ये हम लोगों का एसोसिएशन हैज बीन क्वाइट लॉन्ग, सो इट्स नाइस अगेन टू कैच अप विथ यू आफ्टर बिजी शेड्यूल. आप भी बिजी हो, हम भी बिजी है. तो इट्स नाइस so टू बी हियर. Ranjita, बताओ मुझे that you are a founder of KFL, Kshitij, where dreams meet reality, plus you're an army officer, right? So how do you juggle this and an author and a poetess? So how do you kind of juggle all these apples together with two hands? Basically I don't juggle. एक basket में I keep everything. So it's basically time management and support of the family that I'm able to reach till here. और सबका support है और एक passion driven है, तो I find out time for my passion, and it has resulted in successful 5 years of Kshitij. So we are heading towards what we can say कि एक हमारा noble cause था to identify the budding poets and to give them big platform. So it's like एक idea था which I executed. आप भी उसका part रहे हो and धीरे धीरे 5 साल बीत गए, पता भी नहीं चला. और being army wife तो हर दिन यानी it's like living each moment, living each and giving respect to the time. Basically, many of us, like I have seen, I have also been a homemaker. So the difference, the transition which took place when I understood the value of the time. Otherwise, it's like कि many a times हम एक ही काम करते रह जाते हैं, हम फोन पे बात करते रह जाते हैं. And I utilized it wisely and creating something productive for the poets, which was my passion. And then I started with writing books. So everything is managed, and I am a very good, I should say, a chef also. So I manage, basically managing everything and enjoying whatever I am doing. So that So is the one secret. thing what I really like about you is जब आप इतने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हो, and especially जब women's poem आती हैं, what I have seen is you always discourage that abla nari wala poetry, and you have always promoted poetry where women empowerment is Artful. there, Yes. where women have been projected in a very positive way. जहाँ पे भी कहते हैं ना नारी को हमने
आगे लेकर आए हैं पॉजिटिव वे में, कुछ पॉजिटिव पोइट्री आ रही है, तुमने हमेशा उसको प्रमोट किया है, रादर देन दैट हाय मर गई एंड अबला नारी एंड रोती नारी एंड ट्रबल्ड नारी एंड परेशान नारी। तो कैसे, लाइक यू नो, आई जस्ट वांट टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, व्हाई डू यू ऑलवेज गो फॉर द पॉजिटिव? मुझे पता है, जो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड है उनको भी पता है, ठीक है, जो तुमसे एसोसिएटेड नहीं है ये सवाल उनके लिए है। मिसेस गई, बेसिकली बीइंग अ वुमेन, आई फील कि सारी यानी वी आर द क्रिएटर्स नेक्स्ट टू गॉड. We are mother, we are women is every wife, sister, सब कुछ है, मदर इन लॉ है, और हम शायद अपनी पावर नहीं पहचानते हैं. और एक आई फील कि अगर पॉजिटिवली वी सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि आपने देखा होगा सास बहू की प्रॉब्लम सुनी होगी, आपने कभी ससुर दामाद की प्रॉब्लम नहीं सुनी होगी. सो इट्स बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर. और एम्पावरमेंट डज नॉट मीन कि भाई आप खुद का विकास कर रहे हैं. It's about taking the other women also together with you. और इतनी अबला, इतने हम लोग कमजोर नहीं हैं. There are only two. There is male, there is female. Rest तो ये हमारा खुद का कंसेप्ट है, खुद का हमने परसेप्शन लेके रखा हुआ है. जबकि घर भी आप देखोगे, हर घर में डिसीजंस वुमेन लेती हैं. हर घर में खाना और से लेके हर चीज, मार्केटिंग से लेके एवरीथिंग इज डन बाय अ वुमेन. तो वो अपने में ही शी इज वेरी स्ट्रांग, गिविंग दैट रिस्पेक्ट. वो खुद से बच्चों का डिसीजन से लेके बच्चों के स्कूल, एवरीवेयर शी इज इन्वॉल्व. तो फिर वो अबला कैसे हो गई? वो शी इज अ मल्टीटास्कर एंड शी डज एवरीथिंग स्मूथली. We undergo so many physical changes, we undergo so many things, still we are, I have seen like my mother-in-law, my mother, ठीक है, they are not, but they were homemakers, घर बना दिया उन्होंने, तो they are powerful. तो ये जो एक खुद को, अपने को सिंपैथी देना, अपने को विक्टिमाइज करना, आई डोंट बिलीव इन दैट. आपको कोई चीज का मन है तो यू गिव, बोलते हैं ना बहाने, कि भाई मैं नहीं कर सकी बिकॉज इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया. ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ही नहीं चाह रहे थे. बिकॉज 100 में से 80% women whom I have met, they are stuck in their own thoughts, in their own mindset. और if they positively move, मुझे नहीं लगता कि अभी सोसाइटी इतनी क्रूएल हुई है कि आपको काम करने नहीं देंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स a woman can do. हम ही अपने बेटे, इनफैक्ट द सोसाइटी का आइडिया हैव चेंज. हम जो बेटे बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, तो बेटे को भी खाना बनाना सिखा रहे हैं, बेटी को भी हम आगे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. तो माय डॉटर डोंट नो कि शी इज अ गर्ल, शी नोज शी इज अ इंडिविजुअल, शी इज बीइंग ट्रीटेड सेम एज हर ब्रदर. सो उसको ये थॉट ही नहीं है कि क्योंकि वो बड़ी वैसे हो रही है. तो सोसाइटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ अस. तो आई ऑलवेज फील कि वी आर पॉजिटिव एंड वी आर दी चेंज मेकर्स. तो जिस दिन हम अपनी स्ट्रेंथ पहचान लेंगे सारी, क्योंकि हमने देवी देवताओं को भी देखा है, हर जगह नारी शक्ति है, तो वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है. दैट इज विद इन अस. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिट्रोस्पेक्ट, यू हैव सेल्फ रियलाइजेशन. आई फील जिस दिन हम पहचान जाए अपने को, इज तो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ इज स्मूथ. इट्स नॉट दैट टफ जो हमने बना के रखी है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ही वैसा है. तो राइट. हाँ, तो आई So, थिंक या आई वुड लाइक टू नाउ, एक बहुत सवाल है, मैंने बहुत लोगों का आता है कि मैंने तो तुम्हारे को आगमन में देखा था एज अ पोएटिस, राइट, एज अ को फाउंडर, फिर वहां से अलग हो गए, एंड देन यू, क्षितिज वाज योर ब्रेन चाइल्ड, राइट? सो इन 5 सालों में अब बेबी क्षितिज से लेके 5 year old क्षितिज में what all challenges have you gone? Because मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, because somehow जिसको challenges नहीं पता है, they think कि अरे ये तो ऐसी बन गई, ठीक है ना. जिसको नहीं पता पीछे क्या हुआ है, behind the scene what you have faced, उसको लगता है ये तो कोई भी कर सकता है. यस, हर कोई कर सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ इम्पॉसिबल नहीं है,
बट उसके पीछे जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन गई है, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू लाइक जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा उनकी भी ना हिम्मत बढ़ेगी और 6 महीने के अंदर अपने आइडिया को ड्रॉप करके वो भाग नहीं जाएंगे. सो थोड़े से कैन यू जस्ट पुट जस्ट Surely, फोकस, surely. आई डोंट वांट टू यू टू डिस्कस योर मंत्रा, your magic, ना ना, but मंत्र definitely की I बात would ही नहीं like है. you to show the way to budding entrepreneurs. Basically never give up. क्योंकि when I started, आपको भी पता है, I am an author, so I have been part of many कवि सम्मेलन्स, many open mics, और it was literally very easy being officer's wife. आपको हर 2 साल में पोस्टिंग होनी है, तो obviously it's very easy कि आप बस जाइए, आप कविताएं सुनाइए and you come back. It was fine, but actually जो आपका कर्मवीर अवार्ड है, it's about कि do something for the society, and that's we are being like in army also we are part of ABBA, so we keep doing. तो कवि सम्मेलन सब जगह मैं जा रही थी, सब जगह सब कुछ अच्छा चल रहा था, but there was one idea जो stuck हो गया माइंड में, जो I got, because it's not देखा देखी. क्षितिज Yes. इज नॉट कि मैंने 2 लोगों को देखा एंड आई स्टार्टेड ऑफ. सीधी बात, क्योंकि आई हैड एन आइडिया, एंड सिंस आई हैव सीन माय मॉम, सबको कहानी पता है, हर सडन डेथ एंड एवरीथिंग, सो दैट मेड मी दैट स्ट्रांग एंड बोल्ड कि मुझे लाइफ में काश नहीं हो. आई वांट टू गिव अ ट्राई, whether I fail or succeed, but I want to give a try. And that was the zeal. और वेयर एवर आई वेंट, मुझे कहीं कमी लगी, हो सकता है किसी को ना लगी हो, और मैंने किसी को देख के नहीं कि भाई उनका ग्रुप चल रहा है तो मैं भी शुरू कर दूं ग्रुप, वैसी मेरी थॉट प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम बोलते हैं ना, तो वो नहीं था. इट वॉज दी ऑन्टरप्रेन्योर्स का जो भी एक मंत्र है, वो यही है कि डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डोंट रन फॉर मनी, एंड जस्ट स्टार्ट ऑफ वट एवर यू आर थिंकिंग. धीरे धीरे, तो आई स्टार्टेड विद जस्ट वन आइडिया कि that is everybody knows कि Indian Idol is having singers, that is budding singers, dancers are having Dance India Dance is having budding dancers. So why budding poets are not getting that big platform? बस ये एक छोटा सा why था, जिसका मैं खोजने चल दी आंसर, और करते करते मैंने लोगों से डिस्कस करना शुरू किया. मुझे लोग रास्ते बोलते ना, आप शुरू करो चलना तो आपको बोलते कारवा बनता गया, लोग True. सपोर्ट करने लग गए. एंड सेकेंडली, इस आइडिया को मैंने ड्रॉप नहीं किया. ये मेरा, मैं खुद को ऑलवेज आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ कि इस आइडिया को लेकर मैं बहुत एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे ये करना है. एंड मैंने उसके लिए हर चीज, यानी अगर मैं अपडेट नहीं, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की, क्योंकि आई वॉज वेरी फोकस टू माई गोल. मेरा गोल था कि मुझे करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, मुझे एक इवेंट करना है. दैट वॉज जस्ट वन इवेंट. ग्रेजुअली लोग जुड़ने लगे एंड क्षितिज स्टार्टेड. और क्षितिज मेरे लिए, आई हैव 2 children, my son and my daughter, Abhigya and Ikshita, and Kshitij is my third child. ये इमोशन आई स्टार्टेड शेयरिंग विद क्षितिज, क्योंकि जैसे जैसे इट वाज ग्रोइंग या लोग जुड़ रहे थे, और जो खुशी, जैसे एक बच्चा चलता है पहली बार तो माँ को होती है, तो उसी तरह क्षितिज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तो वो हैप्पीनेस, मैं सीधी बात है, मैं सच में इतनी खुश कि आई जस्ट वांटेड कि अब ये जैसे अभी 5 years का है, तो आई एम प्रेइंग कि अब ये 15 साल का हो जाए, ये 20 साल का हो जाए. तो दिस इज द हैप्पीनेस आई गेट व्हेन क्षितिज ग्रोस. तो आई पुट ऑल माई हार्ट एंड सोल इन इट कि जैसे आप अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं देख सकते, कभी उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते, तो आई कान सी क्षितिज फॉलिंग डाउन. और उस पैशन, उस डिटर्मिनेशन से आई स्टार्टेड वर्किंग. तो दैट इज द सक्सेस मंत्र. तो अगर अब इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, इसके बीच में you went ahead and you went into a beauty pageant also in it was 2018 and everything was done intentionally, to be very frank. hmm, लोग बोलते हैं कि भाई आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, हर चीज क्षितिज के लिए की गई थी. क्योंकि अगर मैं इंडियन, क्योंकि वेन एवर यू सी, अभी इंडियन आइडल आ ही रहा है टीवी पे, इफ यू विल सी,
those people who are coming from 2 tier cities, उनका makeover होता है, and they become so smart, so presentable, so that we being Fauji wives, we know the importance of presentation, grooming. We know that. तो I felt कि why can't, क्योंकि अगर हम groom करते हैं अपने poets को, तो obviously वो not only poetry, they can be successful in any career. They get that confidence to speak, to give the interviews and all. और उसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल बनना जरूरी होता है, क्योंकि लोग पूछते हैं आपने खुद कब किया है जो आप दूसरे को एडवाइस दे रहे हो. तो True. एवरीथिंग आई डिड फर्स्ट, यानी बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट आई डिड ऑन माई सेल्फ कि ओके इट इज फीजिबल. अ पोएटेस कैन बी अ मिसेस इंडिया. अब बोलते हैं ना कि पहले कवियत्री हूं तो पहले मैं ऑथर बनी. मैंने शुरुआत मैंने ऐसे रैंडम स्टार्ट नहीं किया, किसी को देखा देखी नहीं किया, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग चेंज, तो उसके लिए मैं खुद चेंज किया. आई वेंट थ्रू ऑल द ड्रिल्स सो दैट अगर लोग मेरे पे क्वेश्चन ना करें कि खुद तो किया नहीं है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल. तो Right. नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो दैट वाज द थिंग व्हिच वाज डन डेलिबरेटली. जैसे बीइंग जैसे यू आस्क पॉजिटिविटी, so I did the course to become a certified life coach so that a poetess can be a positive poetess. तो जब मैं लिख सकती हूँ, मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ, तो दूसरा क्यों नहीं सोच सकता. तो True. एवरीथिंग आई डिड ऑन माई, बोलते हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल बकरा आप बोल लो, तो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ सो दैट जैसे आज इफ आई एम ब्रिंगिंग KFL, so I am damn confident because I have seen that thing. I have been part of that fraternity. I have friends. I have people to support me. So That's why. यही मैं पूछना चाहती थी, व्हाट इज KFL? मुझे पता है, पर अगर मैं जी किसी को बोलूंगी तो वो क्षितिज तक तो पहुंच जाएगा, एफ और एल पे अटक जाएगा कि हाँ. क्षितिज तो सब पोएट्री है, तो KFL क्या है? सो हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक तो KFL क्या है, सेकंड KFL को किस एकदम से होता है ना, आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि यस मैंने करना है, तो KFL कैसे निकला? क्षितिज तो मुझे पता है कैसे निकला, हाँ. जैसे KFL कैसे निकला? क्षितिज का आइडिया था टू स्टार्ट विथ इंडियन आइकॉनिक पोएट व्हिच आई डिड. उसके बाद आया कि क्षितिज 3 साल में काफी अच्छा स्टैब्लिश हो रहा है, काफी अच्छा कर रहा था. वी हैव डन 3 seasons. वी वर एबल टू टच almost 10 to 15,000 of poets across India. इसके बाद वी सॉ कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो पोएट नहीं है, बट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ, यानी दे आर गुड, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, बट हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि दे आर नॉट पोएट. तो मुझे ऐसा लगा कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है क्षितिज को पोएट्री के लेकर, एंड दे वर पोएट्स ऑफ क्षितिज जिनका हम ग्रूमिंग ऑलरेडी कर रहे हैं. तो जब उनकी ग्रूमिंग हो रही है तो दे नीड द प्लेटफॉर्म टू वॉक, टू स्पीक देयर हार्ट आउट. तो वो कहाँ करेंगे, क्योंकि पोएट्री सेगमेंट हैव लिमिटेशंस. तो वी स्टार्टेड विथ क्षितिज पैशन एंड लाइफस्टाइल, दैट इज KFL, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट ईयर सीजन 1 किया था, मिस्टर एंड मिसेस इंडिया 2022, and which focuses on role model. यहाँ भी हमने डिफरेंस यही किया है बिकॉज शुरू से क्षितिज की नींव ही रखी गई है टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द सोसाइटी, टू ब्रिंग द चेंज. So here also we brought key role models who are not just a poet. They may be of some different field, but they can be part of Kshitij through KFL. सो KFL का होराइजन और हमने बड़ा किया, केवल पोएट्स ना होके हर वो हर वो इंसान, हर वो शख्सियत जो आगे आना चाहते हैं, जो अपना एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे वांट टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा है, तो दे कैन शोकेस दैट ऑन KFL, दैट इज फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. फिर बहुत लोग हैं जो स्टार्ट करते पर उन्हें क्राउड नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए दोज हु आर नॉट पोएट. So basically, this is extended version of Kshitij, and it deals with Kshitij, passion, and lifestyle. Okay. So it is. So you are You can covering lifestyle means
सभी कुछ होता है, जैसे कहते हैं ना, सभी खाना कुछ, हो गया, जैसे डाइट हो कैंडल गया, मेकिंग है, ग्रूमिंग हो जैसे गया, आई पर्सनैलिटी। मेट, यस, हाँ, पेंटिंग आ गई। जैसे पीपल आर देयर हु आर इनटू स्मॉल बिजनेस लाइक कैंडल मेकिंग और पेंटिंग्स हो गई, या साड़ी पे अब डिजाइनिंग हो रही है, सब कुछ डेको पे आ जाए। दे आर डूइंग एवरीथिंग बट दे आर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। There राइट, are lot of people, because I met so many कि मैम हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, but they don't know how to start with या how to reach. Since हमें 5 years हो रहे हैं, and we have this platform was created for budding entrepreneurs, then budding fashion stylist, makeup artist, so that they can also connect. और क्षितिज जो है वो सबके लिए एक वो बन जाए, एक fruitful और एक happy place where everybody can be connected together. और आपको भी पता है एक दूसरे के ही सपोर्ट से, तो जैसे हमारे पोएट्स कैन बी बायर्स, हमारे पोएट्स कैन बी सेलर्स। तो इट्स लाइक कि बहुत सारे पोएट्स ही थे जो ये सब काम करते थे, बट तो उन्हें आइडिया ही नहीं था। तो बेसिकली गिविंग मोर होराइजन एंड मोर स्पेस टू प्रेजेंट योरसेल्फ, टू अपडेट योरसेल्फ। फिर पेजेंट लेके आई, ताकि बहुत लोगों को बहुत हेवी लगता है कि मलाइका अरोड़ा या करीना कपूर को देख के दे आर लाइक कि अरे फैशन फैशन। तो फैशन वो नहीं है, फैशन इज समथिंग वेयर यू आर कंफर्टेबल। और हर किसी को शौक होता है कि भाई वो एक रेड कार्पेट पे चले, तो आराम से हमने ग्रूमिंग क्लासेस दे दे के, हमने हमने अपने ग्रूमर्स को बुला के उनकी वो विश भी हमने पूरी की। बिकॉज आप अगर रोल मॉडल हो, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, यू नीड टू बी एक्नॉलेज्ड। और we generally do talent based programs, so everybody we take nominal fees, and then it's open, बोलते हैं ना, arena where everybody exhibit their talent. इट्स नॉट कि आपने जैसे कि उसी को मिलेगा जिसने भैया एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, वो दिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वी हैव अ नॉमिनल फीस जो लेके, एंड एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, एंड दे लर्न। बेसिकली वी वांट देम टू ग्रो। जैसे मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंस देखा, आई वांट एवरीबडी टू गो थ्रू दैट। आप इसी बहाने अपने ड्रेसिंग पे ध्यान देते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन ग्रूमिंग जो हमें नहीं पता है। तो राइट। अगर वी आर ओपन फॉर लर्निंग, द स्काई इज द लिमिट। कलर कॉम्बिनेशंस हो गए, आपका मेकअप हो गया, बहुत चीजें इससे रिलेटेड है। मेनी पीपल डोंट नो, दे थिंक कि भाई शॉर्ट ड्रेस इज द सिनोनिम ऑफ मॉडलिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। you need to be comfortable, and you confidence is the basic बोलते हैं ना synonym. So And you have to we be need to, comfortable in what you wear yes, and we what you need to walk. change our attitude. We should not be बोलते हैं ना carried away with the things which people are trying to show. तो अपने basically जब आप में confidence है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो that is the sole motive, कि फिर आप अपनी भाई कॉन्फिडेंस होगा तो यू कैन स्टार्ट योर न्यू जो भी वेंचर है। तो और मैं यहाँ तक आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। आई डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई स्टार्टेड That फ्रॉम I will not स्क्रैच। agree. कुछ हाँ, नहीं है, मैं नहीं बोल सकती। टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बट एक्चुअली क्या है, चैनलाइज ठीक से किया गया है। हाँ, क्योंकि यू हैव ये भी चैनलाइज योर एक चीज टैलेंट। है। देखिए टैलेंट सब में है। आप ये अगर वी कांट डिस्टिंग्विश एनीबडी कि भाई तुम टैलेंट नहीं है और तुम में है, वो नहीं है। एवरीबडी किसी में हिडन है। कोई एग्जिबिट कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। तो उसको जिसे कहते हैं पहचानना, अपने आप को खुद को जानना, और उसके बाद दुनिया के आगे प्रेजेंट करना, दैट इज एन आर्ट। तो इसी आर्ट को अगर जब मैं कर रही हूँ, तो आई लव टू टेल पीपल कि आप भी करो। इट्स क्वाइट, यानी इफ यू आर रेडी टू लर्न, you can go to any extent. Here I would like to ask you, Ranjita, that एक चीज जो छूट गई है अभी डिस्कशन में, that is Kshitij Publications. You are also the CEO of Kshitij Publications. So Shushmanjali शुरू हुई, second Shushmanjali आई, and then we saw you go into publication also, publishing line. जी, So do you have a message to convey
to your audience, and because audience तो देखेगी, काफी देखेगी, share भी होएगा. So what message do you have for Kshitij Publications to reach out to people out there who will be watching you? क्षितिज पब्लिकेशन इज द इनिशिएटिव, आपके जो वर्ड्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करने का एक, एंड इट्स लाइक जनरली बडिंग पोएट्स डोंट गेट दैट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च देयर बुक. उसके अलावा पब्लिशिंग, आप जिसे बोलते हैं ना कि आई फील आई सजेस्ट टू ऑल द एल्डरली पीपल ऑल्सो कि आप दुनिया से जब भी रुखसत हो अपनी किताब छोड़कर जाए. तो अगर आप राइटर हो, अगर आप पोएट हो, तो आई ऑलवेज इंसिस्ट टू पब्लिश योर वर्क. तो क्षितिज इज डूइंग दैट सिंस 2018. हम क्षितिज पब्लिकेशन के साथ अभी तक हम लोग 30+ बुक्स निकाल चुके हैं, एंड वी आर इनटू एंथोलॉजीज आल्सो. we have done kids anthology जिसके अभी भी registrations are open. Then we are having a काव्य क्षितिज, that is जो हमारे 18+ लोग हैं उनकी पोएट्री का कलेक्शन है. एंड देन वी हैव क्षितिज टॉक्स where we bring the inspiring stories of influential Indians. So it's basically it's an initiative since being doing this poetry organization. So and we provide with the launch also. जो generally publication house budding poets को launch नहीं देते. आपको भी पता है, आप चाहे कहीं से भी आप पब्लिश करा लो, लोग पब्लिश कर देंगे, अमेजोन पे डाल देंगे, पर आपको वो फील, वो लॉन्च की फील बाय स्पेशल पीपल, लोगों का ताली बजाना, दैट इज द एम्बियंस विच ऑल अराउंड, यानी वो फील आपको देना कि यू आर स्पेशल, वो कॉन्फिडेंस देना कि कम विथ योर सेकेंड बुक, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ब्रिंगिंग योर बुक. तो वो कॉन्फिडेंस क्षितिज देता है थ्रू क्षितिज पब्लिकेशंस. सो वी आर इनटू दिस सिंस 5 years, और अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं. तो वी आर ऑलवेज यानी रेडी टू प्रमोट आर बडिंग पोएट्स, और हमारी पूरी टीम है, सब लोग हैं, तो सब पूरा हम लोग करके देते हैं आपको काम, आपकी बुक अमेजोन तक लेकर आते हैं. तो इट्स लाइक दैट. तो इट्स वेरी हार्टनिंग दैट लोगों की किताबें आती हैं, और जिनको मैंने देखा है जो भाई पहले साल 2018 में क्षितिज से जुड़े थे, 2020 तक उनकी किताब हम लेकर आ रहे हैं, तो ये खुशी होती है कि यस दे हैव कम अ लॉन्ग वे, उनकी पोएट्री अच्छी हो गई, वो लोग भी, उनका कलेक्शन हो गया, दे हैव नॉट स्टॉप्ड राइटिंग. सो दिस हैप्पीनेस गिव्स यानी क्षितिज पब्लिकेशन गिव्स टू अस. That's awesome, and I think like Kshitij, where dreams meet reality, Kshitij KFL and Kshitij Publications, सब कुछ इकट्ठा समेट लो तो वो रंजीता सहाय आशीष कहलाता है. So अब मैथ्स में होता है ना, this is equal to this. So I think I doubt if you stop at 3 is equal to 1. मेरे को पता है वो जो दिमाग है ना मेरा बहुत खुराफाती है, कुछ और भी जैसे एक चीज सेटल होती है तब तक दूसरे की धूल उड़नी शुरू हो जाती है. क्षितिज बेसिकली पीछे मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, फॉर विच आई एम ऑलवेज थैंकफुल. बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप भी हो, तो लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड बोलते हैं ना वेल विशर्स आर देयर, और सबका सपोर्ट है. एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिट. तो इट्स बेसिकली एक कलेक्टिव, क्योंकि क्षितिज अब ऐसा नहीं है कि क्षितिज कुछ अच्छा करे तो मुझे खुशी होगी. आज ये हमारी कम्युनिटी बन चुकी है कि कुछ क्षितिज का अच्छा होता है तो सभी को खुशी होती है. तो वो कम्युनिटी बिल्डिंग जो हमने की, जो हमारी कोशिश थी कि ये सबको अपना, वो बोलते हैं ना, सब अपना बिट दे रहे हैं, सारे बहुत लोग लगे हुए हैं. मैं अपना अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये जस्ट एन आइडिया जिसे टीम ने एग्जीक्यूट किया है. हाँ, ये है कि मैनेजिंग एवरीथिंग इज टफ, बट यस सबका सपोर्ट है मुझे. यानी आप मानोगे नहीं, अभी हमने क्षितिज लिट फेस्ट किया, तो इट इज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि वी डोंट हैव एनी बैकिंग और वी डोंट हैव एनी बिग स्पॉन्सर्स विद अस. तो इट बिकम्स वेरी टफ टू डू 2 days इवेंट, और वो भी होटल में आप कर रहे हो, आप ऑडिटोरियम में कर रहे हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व.
बट मेरी कम्युनिटी, मेरे लोग, मैं खुल के बोलती हूँ मेरे लोग, क्योंकि मेरे मेंबर्स, यानी हर एक बोलते हैं ना, बंदा जरूरी होता है, हर एक इंसान जरूरी होता है। तो आप सब ने इट्स लाइक कि तू रुक मत, तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। दिस इज द थिंग आपका शुरू से रहा है। उसके अलावा जो लोग थे कि मैम आप रुकना मत, whatsoever आप जो कर रहे हो रुकना नहीं चाहिए। तो दिस क्राउड फंडिंग हेल्ड अस to conduct such a big event. So people work together. तो यूनिटी बोलते हैं, हम लोग पढ़ते ही है कि बेस्ट इज यूनिटी। तो वो मुट्ठी बांध लो तो फिर आप दुनिया जीत जाओ। तो ये एक सपना है सबका। और क्योंकि हम सब बडिंग पोएट्स, और हम सब इस चीज से गुजरे हैं कि कैसे रिजेक्शंस होते हैं, कैसे निग्लेक्ट किया जाता है, कैसे आपको दबाया जाता है, कैसे आपको इग्नोर किया जाता है। एवरीबडी हैव गॉन थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस। पीपल वांट देयर स्पेस। तो मैं फेस बन गई, बट मेरे पीछे बहुत लोग हैं। तो एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको थैंक्स भी बोलना चाहूंगी कि ऑब्वियसली साथ में जो मजा साथ में काम करने का है, वो अकेले और लोग डेलीगेट कर लेते हैं, हम लोग वर्क, तो वो और अच्छे से होता है। तो True, आई very वुड true. से कि आई एम अ गुड मैनेजर। बस दैट्स इट, एंड अ फाउंडर। तो बस ये यानी एक ऐसी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर इंडिया का कुछ अच्छा बनता है तो इंडिया का नाम सब तरफ होता है। तो वैसे ही इट्स नॉट अबाउट पीएम, इट्स नॉट अबाउट सीएम, इट्स अबाउट इंडिया। तो सेम, इट्स नॉट अबाउट रंजीता, इट्स नॉट अबाउट एनी मेंबर ऑफ द टीम, इट्स अबाउट क्षितिज। तो this sort of emotions we share with Kshitij. So thank you so much, Ranjita, and congratulations again for Thank you. RSVKA, Ranjita. Sorry, RN Talk. देखो मैं खुद ही stumble कर जाती हूँ. RN Talk Swami Vivekananda Karamveer Award 2023, and as well as Khushu Founders Choice Award. And I congratulate you for both Founders Choice Award इसलिए क्योंकि 3:1 अभी मैंने बताया था सबको. It's not very easy to do everything together, but yes, she's been doing it. So congratulations again, and thank you so much. And also all the very best for the exams. I know being a mom, you are also supporting your child go through entrance exams, which is a very tough phase. So yahan se from RN Talks and all who are watching, I would say best of luck, and may he come out as shining colors and prove himself and be what he is and be very comfortable in what he वही is. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो जो मुझसे टकराता है, कि जस्ट लर्न टू बी हैप्पी एंड अंडरस्टैंड योर वैल्यू, एंड यू आर born with a purpose, so find your purpose. Very true. Find your purpose. Key line. Believe in yourself and find your purpose. So thank you so much, Ranjita, for joining us today evening on this interview. And it's been a pleasure chatting with you. और 30 मिनट कैसे निकल गए हमारे पता ही नहीं लगा हमारे को. वो तो हम लोग अगर इसे ऑफ ऑफ भी कर दे तो भी we will keep talking and talking and talking. Yes. So this is time bound. So I'll thank you again, and thank you for being here, and carry on being yourself. That is all. लगे Thank रहो. you so much, Mrs. Gai. Thanks a lot, everybody, for watching, and see you soon. And thanks for फिर the से मिलते हैं. award. Thanks a lot. Okay. See you. Bye bye. Take care. Bye bye. So, guys, that was Ranjita Sai Ashesh. She is the CEO of Kshitij, Where Dreams Meet Reality. She's the CEO of KFL. She is the CEO of Kshitij Publications. She is a mother. She's an army officer's wife. And she's a poet and she's an author. And she is fulfilling all her responsibilities very well. And I'm sure, like I said, horizon पे जैसे ही चीजें settle होनी शुरू हो जाएंगी, Kshitij is, I won't be surprised if Kshitij comes up with something very new. And I expect that. So here's wishing all the very best to Kshitij. And आप लोगों को भी इससे एक चीज मिलती है, जैसे मिसेस नीता मेहता आई थी, जब उन्होंने कहा था खुद पे तरस नहीं खाना,
वही चीज रंजीता आशीष भी कहती हैं कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, बैठे मत रहिए अबला नारी बनके, कुछ नहीं मिलेगा। वुमेन गेट अप, अपनी वैल्यू ढूंढो, अपना लाइफ का पर्पस ढूंढो, गेट आउट, द वर्ल्ड इज योर्स टू कॉन्कर. So today I've brought a very successful entrepreneur for you. Let her be an example for you to move on in life and conquer the horizons. With this, I'll end the show for today. Thank you very much for being with us. And we'll meet you tomorrow with another different personality whom you are going to love. Till then, thank you. Tata.